पेरेंट्स के पास एक बच्चे की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपया होता है। 10 লাখ টাকা একজনের জীবনের দাম, সেটা মুখ্যমন্ত্রী ডিসাইড করে নিলেন। বাবা মার কাছে সন্তানের দাম 10 লক্ষ টাকা। कोलकाता के मुख्यमंत्री ने अब डिसाइड कर लिया है कि पेरेंट्स के पास उनके बच्चे की कीमत 10 लाख रुपीस होता है। आपको तो पता ही है उस टाइम हालत इतना बेहाल था, उनकी पेरेंट्स को भी उनका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था। जब पेरेंट को चेहरा नहीं दिखा सकते तब इसको सुसाइड के रूप में कैसे घोषित कर सकते हैं। प्रोटेस्ट में जुड़े हुए डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने बताते हैं कि एक लोग नहीं बल्कि अधिक लोगों ने मिलकर ये कांड किया, और बाकी लोग क्या राजनीतिक साइड से मजबूत होने की वजह से उनको टच नहीं किया जा रहा। ये क्वेश्चन उठी थी प्रोटेस्ट में जुड़ी हुई डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स के मुंह से। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लोग एग्रेसिव होकर गुस्से में अभी तक प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट कंटिन्यूस चल रहा है। আমার বয়সী ডাক্তাররা আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তিনটে ডিমান্ড ছিল। একটা উই উইল নট অ্যালাউ দিস টু বি মানে এরকম ভাবে ডিসপ্লেস। আমরা ইন্টারন্যাশনালি উই হ্যাভ আস্কড ফর সাপোর্ট এন্ড উই গট ইট। আজকে বিবিসি নিউজে দেখো জানানো হচ্ছে যদি দরকার হয় এরা না পারলেও আমরা জানিয়ে দেব যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে আজকে আমরা কি ধরনের অত্যাচার আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। সকলের মতন একজন এসেছি, খুব লজ্জিত। আমার দেশের একটা ঘটনা নিয়ে আমি খুব লজ্জিত। We demand justice, and by justice we mean justice, and we do not also expect that we will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. জীবদ্দশায় এটা দেখিনি, এটা একটা মুভমেন্টের পর্যায়ে চলে গেছে। যাদেরকে আমরা মানে মাথায় করে রাখতাম সেই মানুষগুলো মানে তাদের মুখোশগুলো খুলে যাচ্ছে। সো এইটা একটা বিরাট মুভমেন্টের জায়গায় চলে গেছে। সারা ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে যারা এই বিষয়টা জানে, লন্ডন, অ্যাটলান্টা, ইউএসএ, পোল্যান্ড, এই সমস্ত জায়গায় আজকে রাতে সমস্ত সবাই প্রসেশনে বেরিয়েছে। We are not fully satisfied the way the investigation is progressing. It's too lengthy. 9 days have passed. Today is the 10th day since the incident. That is why we are still protesting. That is why we are standing here with in a waterlogged road with rain when there is heavy rainfall. We are still not stopping. We are still continuing our protest. 37 घंटा ड्यूटी के बाद जब वो अपनी पेरेंट्स के साथ खाते हैं, उसके बाद जब वो आराम करने के लिए 4 नंबर वाले मंजिल में सेमिनार हॉल में जाते हैं, तब उनको क्या पता था कि वो हमेशा के लिए आराम करने वाले हैं। अब यहाँ पर लोगों की हजारों सवाल देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस व्यक्ति ने दीवार तोड़ने के आदेश दिया था उस पर भी सीबीआई द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और दूसरे कुछ लोग चाहते हैं राष्ट्रपति मतदान करे या तो मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे, और कुछ लोग कहते हैं सभी महिला और सभी सेवा महिला कर्मियों को आरजी कर में घेरा होना चाहिए, और बाकी कुछ लोग ये सब कॉल रिकॉर्ड्स सीबीआई तक पहुँचाने की मांग कर रहा है। कॉल रिकॉर्ड में भी बहुत सारे चीज पता चलता है लोगों को। আরজিগড়ে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মিকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম মাঝে মাঝে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগড় হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো না। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাবো, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। बांग्लादेश और इंडिया में हर एक स्टेट से लोग न्याय विचार के लिए आवाज उठा रहा है। चलो ये सब छोड़ो, उनकी पेरेंट्स की आवाज सुन के आपको कैसा लगता है? हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनकी पेरेंट्स को उन्हीं की बच्ची को दिखाया नहीं गया और उनको देखने को नहीं दिया गया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया।
चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। इसका मतलब वो देखने की हालत में भी नहीं है। जब पेरेंट्स को उनकी बच्ची दिखाने की लायक नहीं है तो ये लोग कैसे बताते हैं ये एक सुसाइड है। जब थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टर्स एक एक करके पब्लिक में आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं जस्टिस की, और ये मुद्दा जब मीडिया के सामने आता है, लोग इस मुद्दे को लेकर बातें करते हैं, तो अब जाकर इसमें कुछ कार्रवाई होनी शुरू होते हैं। इस डॉक्टर का जो ऑटोप्सी रिपोर्ट था उसमें क्लियरली दिख रहा था, और चीजें सामने चिक चिक कर कह रहा था कि इस लड़की के साथ क्या किया हुआ था। एक डॉक्टर को इतना सब करके मार दिया जाता है, वो भी वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी सारा दिन बिताती है, और इससे ज्यादा दर्दनाक और भयानक क्या हो सकता है। और इतना सब होने के बाद इसे कैसे एक खुदकुशी रूप देने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में कॉलेज के प्रिंसिपल को सबसे पहले स्टेटमेंट देना पड़ता है। जो विक्टिम है उनके जस्टिस के लिए खड़ा होना पड़ता है, उनके जस्टिस के लिए डिमांड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, प्रिंसिपल ने तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद छुट्टी पे चले जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनको किसी और कॉलेज में अपॉइंट कर लिया जाता है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले के संज्ञान लिया और गवर्नमेंट से पूछा, वहाँ के जो अधिकारी है उनसे पूछा कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या। मतलब प्रिंसिपल को इस जगह पर जस्टिस के लिए आवाज उठाना छोड़ के इस्तीफा दे के चला जाते हैं छुट्टी में, और उसके बाद तुम्हें किसी और मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब ये सब आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है। और ये संजय अरेस्ट होने के बाद कॉन्फेस किया है कि हाँ, ये सब कुछ कांड मैंने ही किया है, जो कुछ भी हुआ है वो मैंने ही किया है। वो कोई 11 साल की बच्ची नहीं थी, वो 31 साल की पीजी की स्टूडेंट थी। और कोई समझ पा रहा है कि अकेला ये सब चीजें पॉसिबल भी नहीं है। না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। जिस हिसाब से सारी चीजें सामने आता है, जिस तरीके से खून निकल रहा था अलग अलग जगह से और अलग अलग पार्ट से, और जो ये डॉक्टर के परिवार वालों ने बयां की है, उस हिसाब से वो सब एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। इस मामले में डॉक्टर्स को जस्टिस मिलना ही चाहिए, जस्टिस दिलाना ही होगा, और बाकी अपराधियों को पकड़ना होगा, और किसी और के साथ कभी भी ऐसा ना हो, इसीलिए उसको कोड़ी से कोड़ी सजा देना होगा, ताकि ये सजा दुनिया वाले याद रखे। और मेरा भी 2-3 डाउट्स है जो मुझे 4-5 दिन से सोने नहीं दे रहा, बार बार मुझे तंग कर रहा है ये डाउट्स। तो ये सब डाउट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो डाउट ये है कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने मेडिकल से रिजाइन किया, और उसके कुछ ही समय बाद वो एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में तुरंत अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी, इस प्रिंसिपल से क्या मतलब है, क्या इतना जरूरी है इस टाइम के लिए जो इनको इतना फेवर दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि जब सीबीआई केस को टेक ओवर करने वाले थे तो फिर रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा था। मेडिकल कॉलेज के अंदर ऐसी क्या जल्दी थी। वो मेडिकल कॉलेज एक क्राइम सीन के जैसा है और वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और तीसरा, जिसको पकड़ा गया है वो इतना आसानी से पकड़ा गया है और उसने आसानी से कबूल भी कर लिया है कि उसने सब कुछ किया है। और ये मामला देखकर किसी को लगता नहीं है कि यह सब एक व्यक्ति का काम है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर अकेला इस व्यक्ति पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आखिर वो कौन लोग हैं जिनको बचाने के लिए इतना सारा तामझाम किया जा रहा है। क्या वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके लिए ये सब कुछ तामझाम किया जा रहा है। और लास्ट एक और डाउट है, जब ये सब हो रहा था तो क्या वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आई थी, कोई शोर नहीं आई थी क्या किसी चीज का। उनके जो दोस्त है, फ्रेंड है, क्या वो किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, किसी को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर पता है तो बताने से क्यों डर रहा है। ये 5 डाउट था मेरा, आप इसके बारे में कुछ जवाब देकर जाना। आपको क्या लगता है और बाकी जो लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है।